Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I welcome you all on my channel. This is a very different session today जहाँ पर एक student के बारे में हम देखेंगे. We will be seeing, we will be learning from a journey of a student, and he is one of my students from Unacademy Plus. वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसकी पहले ही कर दी थी, but then I think जो एक full force में आई थी, that was the time he joined Unacademy Plus. Also guys, he has cleared 3 bank exams, he has cleared 1 SSC exam and 1 SNAP exam. So it's not just by luck कि चलो हो जाता है, कई लोगों का luck ही होता है. He has really worked for it and he has achieved all these victories. Let's know more about it. Let's understand कि आप लोगों को और क्या करना है, because ultimately अब मैं आपके समय की student नहीं हूँ. He is the one जो आप लोग अपने आपसे relate कर सकते हो. He is the one जो कि आपके shoes में रहा है and चीजों को उसने ओवरकम किया है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया, प्रूफ करके बताया है. So we will be shortly joining with him and he will be here in this video. We will be asking some questions. I will be asking some questions and he will be answering, and I hope कि आप सभी को बहुत help हो इस session से. Make sure that you have subscribed the channel before we go ahead and hit that bell icon so that बाकी updates, concept, vocabulary जो भी कुछ यहाँ होता है उन videos की updates आपको मिलती रहे. So let's welcome Ravi Sharma. Hello ma'am. Hello Ravi, how are you? All good ma'am. Okay, so this is the video जो हम हमारे viewers, the English workbook के जो viewers हैं, most of them are bank exam aspirants, so वो लोग तैयारी कर रहे हैं and I believe you are a very good example for all of them. और इसी बारे में थोड़े से कुछ questions है जो आपसे मैं पूछूंगी. Okay, so let's start. And first thing I want to ask, or I want to know actually कि आप कहाँ से हैं, क्या आपने अभी तक क्या क्या कर लिया है, आपने कौन कौन से बैंक एग्जाम क्रैक करे हैं, या जो भी एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट करे हैं, जो नहीं भी क्रैक हुए और जो क्रैक हुए हैं. So please tell us little bit about yourself. Thank you ma'am for your kind words. I am from Rajasthan and living in Punjab for the past 2 decades because my father is in Central Reserve Police Force and we have been allotted a government quarter here. तो अब बात करते हैं जर्नी की. So I have done my graduation in 2016 in BTech Electronics and Communication. उसके बाद I worked for Bharti Airtel for 2.5 years and then I quit my job in January 2019 and started my preparation for these government exams. So initially I was not sure of what to prepare, so I was preparing randomly and failed many exams like SBI PO 2019, LIC AAO 2019 and FCI EPFO. I have failed many, RRB JEE, and finally after 5-6 months of failing these exams, I finally got success in IBPS PO, IBPS clerk, and I was in the waiting list of LIC assistant as well. So this is a bit of my journey. Okay. I know this thing. I think आपने वो mention किया है नहीं. आपने बैंक के अलावा भी एग्जाम दी है और उसमें भी आपने क्रैक करा है. So can you mention those exams जो कि आपने बैंक के अलावा भी क्रैक करे हैं? Yes, ma'am. I have cleared SSC CHSL, 2 stages of SSC CHSL. Typing is still pending, but I'm good at typing, so I believe I'll clear it as well. And I have also cracked an MBA entrance exam with 98 percentile. SNAP is that exam. So after that, I have gone through their process of GDPI and got SCMHRD Pune as well. So Okay. these are the other exams. Okay. You also mentioned 2 घंटे खेलने जाते थे, उसके बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे. I really like that because लोगों को लगता है कि हम 100% सब कुछ अगर छोड़ दें, like त्याग दें, we are renouncing every single thing and हमारा हो जाएगा. But we'll come back to it later. Yes, About specific subjects.
ओके, सो वी ऑल नो, मैं चारों की साथ में बात करना चाहूंगी, नॉट दैट कि जीए नहीं होता है प्री में, बट देन प्लीज स्टार्ट विथ रीजनिंग, देन क्वांट, देन इंग्लिश एंड देन जीए, कि आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या स्टडी प्लान बनाया या कैसे आप करते थे? यस मैम, तो मैं इसको पहले प्लान के हिसाब से बताऊंगा और साथ में ही मैं ये बताऊंगा कि जो मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे अपना मतलब कि कैसे प्लान करके कैसे अटेम्प्ट करता था। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मतलब जब बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आपको रश नहीं करना है बेसिक्स, बिकॉज बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर बेस स्ट्रांग है तो आपके बाकी चीजें भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर बेसिक्स आपने 1-2 महीने लगा के अच्छे से कर लिए, उसके बाद क्या है कि आपको अब जो डेली वाली चीजें उन पे आना पड़ेगा। अगर डेली की चीजों की मैं बात करूं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्यू सेट्स ऑफ डीआई और मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और एक दो चीजें और है अरिथमेटिक। तो ये वाली चीजें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये वहां आनी है। तो इसको आपको रेपिटेशन प्रोसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि आपकी स्पीड मतलब दिस इज हाउ यू जनरेट स्पीड, मतलब देयर इज नो मैजिक सॉस टू स्पीड। सो आपको ऐसे ही मतलब कंसिस्टेंटली और यू हैव टू बी मतलब बोरिंग। अगर आपको बोरिंग भी लगता है तो भी यू हैव टू बी बोरिंग, तभी आपका हो पाएगा। सेम ही चीजें हैं रीजनिंग के लिए। बिफोर मूविंग टू रीजनिंग आई वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि है मेंटल कैलकुलेशन। तो अगर आप मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भी आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, क्योंकि पेन एंड पेपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कई चीजें होती है, जैसे मान लो अगर आई हैव टू मल्टीप्लाई 35 into 18, अगर इसको आपको दिमाग में करना है तो आपको 18 के अगर आप दो फैक्टर्स बना सकते हैं 2 into 9, तो अगर 2 को आप 55 में मिला दें तो 70 हो जाएगा और 79 आराम से दिमाग में करके 630 बता सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं मेंटल कैलकुलेशंस करता था। सेकेंड इज रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए रीजनिंग की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें सिलेबस बहुत कम है। देयर आर 6-7 टॉपिक्स ऑफ मिसलेनियस एंड उसके बाद 50% ऑफ द वर्क इज डन एंड 50% इज पजल्स। उसके बाद है पजल्स। अब जो पहले 7 टॉपिक है मिसलेनियस के, उसको आपको बेसिक्स कवर कर लेने एंड इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। और ये जो मैंने बेसिक्स और जो पजल्स के अप्रोचेस सीखे थे, ये मैंने अंकुश लांबा सर की अनअकैडमी पे फ्री वीडियोस देख के सीखे थे। तो ये जो मैंने अप्रोच जब मैं सीखता था सर से, तो मैं क्या करता था कि पहले 10 to 15 वीडियोस में उनकी देखी कि वो क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं पजल्स के लिए। उसके बाद अगली 100-200 पजल जितनी भी मैंने की है, उसमें मैं क्या करता था कि पहले वीडियो पॉज करता था क्वेश्चन के बाद, फिर अपना सॉल्व करता था, देखता था मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, और उसके बाद सर के अप्रोच के साथ अपना अप्रोच मैच करके देखता था कि किस अप्रोच ज्यादा सही है और मतलब कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ या फिर कहाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स अपने आप डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है इसमें भी, रीजनिंग में भी। मतलब प्री इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंस, इसमें मैंने ये रियलाइज किया है। इसके बाद थर्ड आता है इंग्लिश। जैसे कि फर्स्ट हो गया रीडिंग, सेकंड हो गया वोकैब और थर्ड हो गया ग्रामर। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। तो इनिशियली इंग्लिश वाज लाइक a nightmare for me, but it is now okay. And just because of you ma'am, it happens। जो इनिशियली जो दिक्कत आई थी कि रीडिंग में भी दिक्कत होती थी और ग्रामर में भी दिक्कत होती थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने आपके अनअकैडमी पे फ्री वीडियो इनिशियली पहले मैंने सर्च किया था कि मतलब कौन टॉप एजुकेटर वगैरह हैं, तो फिर पता चला कि जिनका नाम आया तो आपका ही नाम सबसे टॉप पे था। तो फिर मैंने आपको उस टाइम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। और उसके बाद मतलब जो आप प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं वो सारे देखे, और जो आपने अनअकैडमी पे कोर्सेज फ्री वाले बना रखे हैं वो भी मतलब ऑलमोस्ट मैंने देखे, तो उससे फायदा हुआ। तो सेकंड है वोकैब। वोकैब के लिए मैं क्या किया कि वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है मैम पूरी। वो इटाइमोलॉजी की टेक्निक से, रूट वर्ड्स की टेक्निक से वो सारी वोकैबलरी है। तो अब मतलब मैं कंटेक्चुअली अगर कोई वर्ड है तो उसको समझ जाता हूँ अच्छे से। इसके अलावा मतलब वोकैब के लिए मैंने रिविजन ही की है, इसलिए इसके अलावा और कुछ नहीं किया वोकैब के लिए। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर के लिए एक बार मैंने आपका पूरा कोर्स देखा है, प्लस पे देखा है वो। तो उससे ग्रामर मतलब मैंने एक ही बार देखी, उसको ऐसे बार बार नहीं देखा। और जितना मेरे को आई डेंट क्रैम इट, बट जितना मुझे समझ आया
वो मैंने उसको समझ के अच्छे से बाद में जो सबसे मेन जो फोकस किया वो सिर्फ रीडिंग पे किया। रीडिंग में मतलब मैं क्या करता था कि सुबह उठ के मुझे रीडिंग ही सबसे टफ लगती थी इनिशियली। तो मैं क्या करता था, आई आई हैव दिस मंत्रा ऑफ डूइंग द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। तो मैं उठ के सबसे पहले करता था 3-4 एडिटोरियल के आर्टिकल्स पढ़ता था सबसे पहले। और चौथा है जीए। जीए के लिए तो आपको डेली मतलब अगर आप 45 मिनट्स भी दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत, इट विल बी योर फॉर्टे इन द मेंस एग्जाम। तो ये गेम चेंजर होते हैं जीए और इंग्लिश मेंस एग्जाम में। तो जीए के लिए मैं गौरव गर्ग सर है, उनकी वीडियोस देखता था। वीकली मैं नोट्स बनाता था और जो पूरे वीक में जो पढ़ा है वो रिवाइज करता था। मतलब वीकेंड्स वर फॉर रिविजन्स ओनली एंड जीए इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंट रिविजन्स, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर रिवाइजिंग थिंग्स, उस पर डिपेंड करता है। तो जीए के लिए ये हो गया। और जो मैंने सेकंड चीज बोली थी कि मैम, अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करता था, मतलब हाउ आई वेंट अबाउट थिंग्स इन एक्चुअल एग्जाम। तो क्वांट में मतलब सबसे पहले मेरा ये रहता था कि मैं सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के, अराउंड 10, इट कैन बी 8 और इट कैन बी 12। सो अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के। तो मैं चाहता था कि मेरे मतलब 6-7 मिनट कम से कम अरिथमेटिक के लिए बच जाए और बाकी चीजें मैं बहुत ज्यादा स्पीड से करने की कोशिश करता था। और वो स्पीड कहाँ से आती थी, वो आती थी जो डेली मैं इनिशियली सुबह 8 से लेके 12-1 बजे तक जो डेली चीजें प्रैक्टिस करता था, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वगैरह। तो उसकी वजह से मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे, जो कहीं ट्रैप है तो उसको तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। तो वो मैं कर देता था। उसके बाद 6-7 मिनट बचे हैं, उसमें अगर आपके 5-6 क्वेश्चन भी या फिर 4 क्वेश्चन भी हो गए तो यू विल टच द 30 मार्क। एंड रीजनिंग में सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि कभी पजल को टच नहीं करना है, बिकॉज आपने अगर गलत पजल को टच कर दिया और 5-6 मिनट वेस्ट भी कर दिया और वो आपको रिजल्ट भी नहीं देगा, तो वहां पे भी मतलब सारा पेपर खराब होने का भी डर रहता है कि मतलब पहली चीज ही गलत होगी तो इफ यू आर लाइक 5 मिनट्स डाउन एंड यू हैव नॉट इवन डन सिंगल क्वेश्चन, तो वहां पे ये दिक्कत आती है कि फिर कॉन्फिडेंस वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मिसलिनियस क्वेश्चन ही करता था। तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 10-12 मिनट पजल के लिए बचा लूँ, मतलब हाफ ऑफ द टाइम पजल्स के लिए बचा लूँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज अ पजल टेक्स 2-2.5, समटाइम्स 3-3.5 मिनट्स। तो उसमें भी ये रहता था। और रीजनिंग में मैं हमेशा टारगेट करता था कि 35 करूं, बट हुआ 1-2 बार हुआ, लेकिन 30+ तो हो ही जाते थे मतलब ऑलमोस्ट। तो इसमें यही मंत्र है कि सेव एज मच एज टाइम फॉर पजल्स। सेम इंग्लिश में मैं क्या करता था कि आई ट्राई टू डू ग्रामर क्वेश्चंस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जितना क्विक हो पाता था मैं करता था, सो दैट आई कैन get at least 7-8 minutes for reading comprehension. If you are getting more time in reading comprehension, that means your accuracy in that portion would go high. अगर आपकी एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं ट्राई करता था कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, और मतलब नहीं होता था गलत, एटलीस्ट इन प्री आई डिडंट डू एनी रॉन्ग क्वेश्चन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 7-8 मिनट बचाना वाज माय मंत्रा, और उधर जितने होते थे वो कर लेता था मैं। और अराउंड मेरे 24-25 और समटाइम्स 28-29 मार्क्स भी आए हैं इंग्लिश में। Okay, that's a very elaborate answer. Thank you so much. आपका फेवरेट इंग्लिश का टॉपिक क्या हुआ करता था, या अभी भी अगर है, if you are still planning to give some more exams, कौन सा टॉपिक आपको बहुत पसंद है? टॉपिक में जैसे जैसे मैं रीडिंग करता गया उसके बाद भी मैं नॉवेल्स रीड कर रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज लाइक केक वॉक फॉर मी इन द लेटर स्टेजेस। उसके अलावा मुझे फिलर्स बहुत पसंद थे, मतलब वो भी रीडिंग की वजह से मेरे को सेंस हो जाता था कि इंट्यूशन एवरीथिंग, मतलब लॉजिक और इंट्यूशन जब मिक्स हो जाते हैं तो मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फिलर्स वगैरह अच्छे होते थे। और जो बेस्ट चीज मैंने आपसे सीखी है वो है पैरा जंपर्स। पैरा जंपर्स आई मतलब आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट इन पैरा जंपर, बट ऑन इन द लेटर स्टेजेस आई इट वाज आल्सो अ केक वॉक। इट्स नॉट केक वॉक बट इट वाज इजी फॉर मी। अगर तो उसके लिए जो आपने टेक्निक्स बताई थी, स्मार्ट अप्रोचेस की, कैसे पेयर बनाते हैं, कैसे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वाली चीजों को पहले सेट कर लेना है, तो वो सारी जो आपने स्मार्ट अप्रोचेस बताई थी वो बहुत हेल्प की है। तो पैरा जंबल्स मतलब ग्रामर में कुछ, मैं पैरा जंबल्स को भी ग्रामर में कंसीडर करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ग्रामर की
वो तो मतलब आपको देखनी है, अगर टाइम नहीं है तो भी देखनी है। जैसे पैरा जंबल हो गया, और भी 2-3 चीजें होगी जो प्रैक्टिस सेशंस है ना। आई यूज टू लिसन यू, मतलब आप कैसे बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो ना। आई यूज टू ऑब्जर्व, आई एम कीन ऑब्जर्वर, तो मैं ऑब्जर्व करता था, अब बोल कैसे रहे हो उसको भी ऑब्जर्व करता था। तो उससे काफी हेल्प मिली, क्योंकि लिसनिंग अगर आपकी अच्छी हो रही है, कई बंदे बोलते हैं कि मतलब मूवीज देखो, ये देखो, वेब सीरीज देखो इंग्लिश में, तो आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाती है, तो उससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो सेट हो जाता है। तो अगर आपको वो कभी सेंटेंस दिखे तो उसके हिसाब से आप जज कर लेते हो कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो यही है बस इसके लिए। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन जो हमने टच नहीं किया है, जो इंग्लिश में होता है डिस्क्रिप्टिव। आप पीओ भी क्लियर करे हो, राइट? यस। सो डिस्क्रिप्टिव में यस। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके लिए कोई टिप आप अगर देना चाहें? डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं 3 टिप्स देना चाहूंगा। पहली टिप तो ये है कि जो आपने जैसे 20, अगर 20 दिन बचे मान लो मेन से, तो आपको 2 ऐसे और 2 लेटर लिखने हैं। बट उससे पहले आपको टेक्निक्स देखनी है कि कैसे, मतलब इट इज नॉट द नॉलेज टेस्ट, इट इज द टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले या तो गूगल पे देखो। मैंने वैसे गूगल पे नहीं देखा था, मैंने आपका कोर्स देखा था, क्योंकि अपने पहली 2-3 क्लासों में सिर्फ यही बताया था कि आर्ट ऑफ गुड राइटिंग क्या है, कि कैसे हमें राइटिंग करनी है। और आपने ये भी बताया था कि नॉलेज टेस्ट नहीं है, कंटेंट होना चाहिए, बट कंटेंट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका स्पेलिंग और ग्रामर, आप कितना अच्छे से लिख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। और सेकंड टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 ऐसे और 2 लेटर आपको डेली लिखने हैं। और थर्ड टिप ये है कि आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा। बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताता हूँ कि पीओ में जैसे ही वो स्टार्ट हुआ ना, जैसे ही लास्ट सेक्शन खत्म हुआ और सडनली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है तो बिना सोचे समझे लोग मतलब 1-2 उंगलियों से ही टाइप करने लग जाते हैं, और मेरे को चारों तरफ ठक 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 ही सुनाई दे रहा था। बट मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, काफी अच्छी है। आई टाइप अराउंड 40 वर्ड्स पर मिनट। तो मैंने क्या किया कि मेरे को सोचने का टाइम मिल गया, बिकॉज मेरे पास अच्छी टाइपिंग स्पीड है और आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई टाइपिंग स्पीड। तो इसलिए मैंने एनालाइज कर लिया कि जो 4 टॉपिक्स ऐसे के हैं और जो 4 टॉपिक्स लेटर के हैं, उनमें से मेरे को कौन सा चूज करना चाहिए और इनमें से किस पे मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो मैंने अपना कंटेंट अपने दिमाग में रेडी किया पहले 5-7 मिनट, और उसके बाद टाइप करने मतलब जल्दी जल्दी मैंने टाइप कर दिया और 1-2-3 मिनट पहले ही खत्म कर दिया, बिकॉज आई हैड गुड टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड की भी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो आप 2 ऐसे और 2 लेटर लिख रहे हैं, ट्राई कीजिए एक अगर आप पेन पेपर से लिख रहे हैं तो दूसरा आप टाइप करिए कंप्यूटर पे, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। और अब प्रेपरेशन पार्ट की बात आई। प्रेपरेशन में यही है कि आपको अगर नहीं भी पता लग रहा है कि आप कैसा लिख रहे हैं, मतलब अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप किसी से चेक करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं भी पता लग रहा है तो आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको इम्प्रूव कर देगी। मतलब राइटिंग में आप जितना लिख रहे हैं, रीडिंग में जैसे होता है वैसे ही राइटिंग में है कि राइटिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव होती है। आई हैव आल्सो बीन writing on Quora for like 4-5 months and I can see the results in my writing as well. तो यही है मैम 3-4 टिप्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट थिंग, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपने कहा कि आप डेली 2 घंटे खेलने भी जाते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम कि आप अपना फोकस लूज नहीं कर रहे हो? आप यू ऑलरेडी मेंशन्ड इट बिफोर आई कुड आस्क कि आप 2 घंटे खेलने जाते थे, फिर आते थे, फिर मेंस करते थे। सो रिलैक्सेशन के लिए या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना, उसके ऊपर इफ यू कैन स्पीक 1 or 2 थिंग्स। मतलब मेरा तो ये मोटिवेशन ही होता था कि 4 बजे तक मैं अच्छे से पढ़ूंगा और मैं अपने आप को वो 2-2.5 घंटे का रिवॉर्ड दूंगा। तो आपको रिलैक्स करती हैं, जो भी आपको पसंद है वो आपको करना ही चाहिए। मतलब यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर हॉबी और इंटरेस्ट। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आई रियली अग्री कि थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है। वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स रिलैक्स। जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप बर्डन लेकर पढ़ाई मत करो। मैं इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ऐसे यूज करती हूँ, बट आई थिंक इट इज लाइक सो नेसेसरी। द मेन थिंग इज कि सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। लाइक अगर आप
2 आवर्स हैं तो 2 आवर्स ही होने चाहिए, वो एडिक्शन नहीं बनना चाहिए, बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए लिमिट के। ऑसम। सो थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पर आए। रवि, एक लास्ट मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को क्या देना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू टेल देम कि आपको रिजल्ट से ज्यादा आपको प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। आपको किसी भी चीज में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स पे ही अपना ध्यान लगा रहे हैं तो वो मतलब वर्थ नहीं है। मतलब आप अगर प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। तो आपका रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू हैव टू कीप योर हेड हाई इवन इफ यू फेस इनिशियली कुछ डिफीट्स भी अगर आपको दिखते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। कंसिस्टेंट रहना है, फोकस रहना है, और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। कभी भी डिफीट भी मिलती है तो अपने आप को ये बार बार कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि योर बेस्ट गेम इज येट टू बी प्लेड। और उस अपने बेस्ट को अचीव करने के लिए डेली अपने आप को इम्प्रूव करो, ट्रैकिंग सिस्टम से इम्प्रूव करो, और जो भी आप मतलब कर रहे हैं उस पर फोकस रह के करें। खेल रहे हैं तो उस टाइम पढ़ाई की बिल्कुल मत सोचें, सिर्फ खेलें। पढ़ रहे हैं तो खेल का मत सोचें, अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए, ओवर इंडल्ज किसी भी चीज में मत होइए, तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी। Okay, तो it यही was great having you here. And yes guys, all of you who are watching this video, I hope कि आपको काफी चीजों के आंसर या छोटी छोटी बातें होती हैं एज अ स्टूडेंट जो आपके साथ में रहती हैं, so I think you can find some or the other thing जिससे आप relate कर सकते हो, या शायद आप होकर गुजर रहे थे and you got the answer. Make sure guys that you have subscribed the channel, and अगर आप और updates चाहते हो, you will find a link of my Telegram channel, Facebook page, my website in the description box below. Check it out. बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए वहाँ हैं. And for those who are planning to get a subscription, you can use code NJM10. That will help you in getting additional 10% off. So signing off now. Thank you so much once again for being here, all of you.